Raindrops on roses, whiskers on kittens, bright copper kettles, and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. Well, these are a few of my favorite things. I was reminded of that song right now, and बाकी सबका पता नहीं, मगर वो brown paper packages वाली बात जो है ना, वो बिल्कुल सच है. I mean, who doesn't feel excited when they receive brown packages full of stuff they've ordered online, right? It feels like receiving a gift, and it's also like a surprise that you're totally ready for. Well, you know what's inside, but you're thrilled anyways to open the package and to feel the product in your hands, right? Hi everyone, namaste. I'm Niharika with you. लेकिन कभी कभी इन सब चीजों में ना इन दैट रेयर 1 in 1,000 चांस अनप्लेजेंट सरप्राइजेस भी मिल जाते हैं जब आपका फेवरेट प्रोडक्ट टूटा हुआ निकले. दिल भी टूट जाता है ना बिल्कुल ऐसे ही. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वेल मेरी फ्रेंड ने एक बार एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया था एंड व्हेन शी ओपनड इट शी लिटरली फाउंड इट इन 2 pieces. कैन यू बिलीव दैट? बट माई गेसेस ऑन अ टेक्निकल लेवल ये सब ना शायद मटेरियल को गलत तरीके से हैंडल करने की वजह से होता है. एंड जस्ट लाइक लाइफ इजंट वन साइज फिट्स ऑल, आवर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स aren't also one size fits all. Materials come in different shapes, different sizes. So broadly, we can categorize them as small items or non-large assets, large appliances और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स. और हर मटेरियल के डिफरेंट सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये ध्यान रखने के लिए कि डिलीवरी प्रोसेसेस के वक्त कोई भी सामान डैमेज ना हो. सो लेट्स स्टार्ट स्मॉल. ओके, स्मॉल आइटम्स और नॉन लार्ज एसेट्स से शुरुआत करते हैं. स्मॉल आइटम्स को हैंडल करते समय पैकेज को फेंकना मना है. स्लाइड द शिपमेंट्स ओवर द टेबल इफ रिक्वायर्ड. शिपमेंट को सॉर्ट आउट करके वर्क स्टेशन वाइज उन पे रख दीजिए एंड ट्रांसफर इट टू द अदर वर्क स्टेशन. The rule of not throwing shipments from one workstation to another applies here as well. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप शिपमेंट को हाइट से फेंक सकते हैं? एंड द आंसर इज नहीं, बिल्कुल नहीं. उन्हें प्यार से बिल्कुल बिन में या टोट्स में रख दीजिए या फिर अनलोड करते वक्त ह्यूमन चेन का इस्तेमाल कीजिए. Let me ask you another question. So, can you overturn the bags to take out the shipment? Again, the answer is no. Absolutely no. एक एक करके सारे पैकेजेस को निकालिए एंड ऑल्सो प्लेस द बैग्स वन ओवर द अदर एंड इंश्योर दैट द हाइट इज नॉट बियॉन्ड 5 feet. Again, do not throw the bags randomly in the staging area. Well, small items are relatively easier to handle, but the process for handling large appliances, it's slightly more scientific, as you will be able to understand now. So, क्योंकि ये appliances बड़े size के हैं और heavy भी, keep the vehicle as close as possible during loading and unloading. And some help is always useful while loading heavy products in the vehicle. So ensure 2 or more people do the needful. During unloading the products should be placed on the pallet in the delivery hub. लाइफ में ना हीरो बनने के और भी मौके मिलेंगे. इसलिए किसी भी भारी सामान को अकेले मत उठाइए और हेवी मटेरियल्स को मैनुअली ट्रांसपोर्ट मत कीजिए. और जब आप किसी भारी सामान को उठा रहे हो तो अपनी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट या टर्न मत कीजिए. राइट? ट्विस्टिंग एंड टर्निंग नॉट अलाउड. सामान को आगे झुककर उठाना भी सही तरीका नहीं होगा. Well, you've got to take care of that back, right? So bend your hips and knees to squat down to the load and keep it close to your body and straighten your legs to lift. And talking about taking care of that back, it's an absolute no to carry the product on your back. और अगर आप इतनी वेट लिफ्टिंग करते करते थकान महसूस करने लगे, मतलब विच इज नॉर्मल, आप अपने लिए एक कुर्सी खोज लीजिएगा. लेकिन अप्लायंसेस पर बैठना हमारे संस्कार नहीं है, नहीं है, नहीं है. प्रोडक्ट्स को स्लांटेड रखना या हेवी मटेरियल्स को हल्के मटेरियल्स के ऊपर रखना भी मना है. ये रूल्स प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हुए या फिर डिलीवरी पॉइंट पर रखते हुए भी वैलिड हैं. Do not place the product horizontally or tilted while transporting or at the delivery point. And similarly, never place the product horizontally while pausing in between stairs. समझ आ गया, right? Great. Well, I'm sure आप ये सारी बातें अच्छे से नोट कर रहे हैं. जितने प्यार से आप स्मॉल आइटम्स और लार्ज अप्लायंसेस का ध्यान रखेंगे ना, उतने ही प्यार से आप ग्रोसरी आइटम्स को भी संभालिएगा, जो अब हमारी अगली कैटेगरी है. सो ग्रोसरी आइटम्स के लिए अक्सर टोट्स को यूज किया जाता है और टोट्स को ट्रांसफर करते वक्त सबसे जरूरी चीज है हैंड ग्लव्स, आपके दस्ताने. यूज हैंड ग्लव्स टू ट्रांसफर द टोट्स एंड डोंट कैरी देम विदाउट योर ग्लव्स ऑन. ऑल्सो ट्रांसफर द टोट्स विद बोथ योर हैंड्स. दोनों हाथों से उठाना अच्छी बात है. बेहतर होगा अगर आप टोट को ड्रैग ना करें और नीचे ना रखें. एंड द रूल ऑफ नॉट थ्रोइंग अप्लाइज हियर एज वेल.
मैथ्स की इक्वेशंस की तरह ना यहाँ भी LHS और RHS की वैल्यू है. So firstly, stage the totes from left to right in the van and then pick up the tote from the top layer right hand side and don't take the totes from the left hand side. Also, remember not to take multiple totes and paste the UD stickers on a reattempt order. और बाद में confusion avoid करने के लिए reattempt orders और खाली totes को mix up मत कीजिए. Lastly, one advice to you, use the ratchet belt to tie the tote and the pallet properly. ये step भूलना बिल्कुल मना है, okay? और हमारी बाकी की वीडियोस देखना भी मत भूलिएगा. The rest of the sessions are yet to follow. So just to recap, today we spoke at length about material handling and its importance, and we learned the do's and don'ts of material handling for small products, large products, and grocery products. Well, आज की सभा यहीं पर बर्खास्त होती है. हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में. Stay tuned.